Hello student, welcome back to the Catalyst classes. My name is Vikrant Tomar and I am the faculty of civil engineering. So here today I am presenting here a question which is based on the shrinkage limit and shrinkage ratio. एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. सो इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक बार कंसिस्टेंसी कर्व को देख लेते हैं. ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता है? अगर आपने इसको पढ़ा हो तो ये ग्राफ शो करता है द रिलेशन बिटवीन द वाटर कंटेंट and corresponding change in the volume of soil mass. ठीक है. So this was the shrinkage limit, plastic and the liquid limit. This is the solid state of the soil, then it converts into semi-solid state. From semi-solid to plastic, when you further increase the moisture content, it will convert to the liquid state. ठीक है. And the corresponding volume change from liquid to plastic is given as VL to VP, and then corresponding to the shrinkage limit, let the volume is dry volume VD. Now as per the question, the plastic limit of soil is given as 25%. So WP is given as 0.25 and its plasticity index IP is given as 8%, that is 0.08. And when the soil is dried from its state at plastic limit, the volume change is 25%. जब प्लास्टिक लिमिट से ड्राई होगा यानी ड्राई वॉल्यूम पर आएगा, देन द वॉल्यूम चेंजेस इज 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट. तो प्लास्टिक लिमिट पे वॉल्यूम कितना है? वीपी है. सो उससे कितना चेंज हो रहा है? 25% ऑफ वीपी. तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा Vp minus 0.25 of Vp, that is 0.75 of Vp, or Vp is equal to Vd upon 0.75 is equal to 1.33 Vd. ठीक है. सिमिलरली द कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट. तो यहाँ पे 25% का रिडक्शन देखा आपने. अब बोल रहा है कि लिक्विड से अगर ड्राई पे आए तो ये 34% का रिडक्शन होता है फ्रॉम द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो आल्सो that Vd can also be written as VL minus 0.34 of VL, that is equal to 0.66 of VL, or VL will be equal to Vd upon 0.66 is equal to 1.515 of Vd. So here Vp को Vd के टर्म्स में एंड VL को भी Vd के टर्म्स में ले लिया. ठीक है. Okay. Now from this curve you can see the slope of the line is same. So I can write the perpendicular by base ratio, that is a tan theta, will be equal in both triangle. ये ट्राइंगल दिखाई दे रहे छोटा वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे ना. सो इन दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो इक्वल होंगे. सो दिस द रिलेशन एस्टैब्लिश्ड. सो कैसे लिखेंगे? VL minus VP upon what I am writing, VL minus Vp is this perpendicular by base ratio, that is liquid limit minus plastic limit. So liquid limit minus plastic limit will be equal to perpendicular to base ratio for this triangle, and this perpendicular is Vp minus Vd. कितना हो जाएगा ये वाला चीज? Vp minus Vd. So Vp minus Vd divided by base कितना है? Wp minus Ws. So Wp माइनस WS. तो WS ही तो चाहिए मुझे, तो इसको रीअरेंज कर लीजिए. सो रीअरेंज करने से होगा ये WS माइनस WP विल बी इक्वल टू VP माइनस VD बाय, इसको नीचे लेके आए, सो VL माइनस VP, और ये शिफ्ट होगा इधर, इनटू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट.
ठीक है, so from here, so this fraction is written as wrong, it is WP minus WS, right? So now WP that is given as 0.25 minus shrinkage limit will be equal to, so VP को क्या लिख सकते हैं हम 1.33 VD माइनस VD बाय VL की वैल्यू 1.515 VD माइनस VP की वैल्यू 1.33 VD. Solve this, take VD as common, wait, into this fraction, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और ये तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ना, आप इसको डायरेक्टली प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नथिंग बट IP. Solving this, 1.33 VD minus VD, taking VD as common, so 0.25 minus shrinkage limit will be equal to, so VD को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1.33 minus 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी VD कॉमन आ जाएगा 1.515 माइनस 1.33, VD से VD कैंसिल आउट, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में IP कितना है 0.08, तो यहाँ से श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, 1.33 minus 1 into 0.08 divided by 1.515 minus 1.33, okay, so this value is 0.1427, तो ये माइनस में आएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा 0.25, सो सोल्व करेंगे इसको तो श्रिंकेज लिमिट आ जाएगा 0.1427 minus 0.25, so negative negative cancel out, 0.107, और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 10.7%, दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट. बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी क्या पूछा है श्रिंकेज रेशियो. सो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है भाई, श्रिंकेज रेशियो इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ओवर द पर यूनिट चेंज ऑफ वाटर कंटेंट. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द श्रिंकेज रेशियो. सो श्रिंकेज रेशियो के लिए V2 माइनस V1, तो क्या ले लें यहाँ से VP ले लेते हैं, VP माइनस VD बाई VT इंटू 100 कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, तो VP के लिए हो जाएगा WP और VT के लिए हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू, तो VP कितना है, तो VP को हम 1.33 VD ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1.33 ऑफ VD माइनस VD by VD into 100 over a change in water content, तो WP कितना है, that is given as 25% minus shrinkage limit 10.7%. तो याद रहे यहाँ पे गलती होती है स्टूडेंट से, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट है ये भी आपको परसेंटेज में ही लिखना पड़ेगा. सोल्विंग दिस VD कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका 1.33 माइनस 1/1 इंटू 100 by 25 minus 10.7 is equal to, so 1.33 minus 1 into by 25 minus 10.7, that is around 2.3. ठीक है, तो 2.3 के आसपास आता है श्रिंकेज रेशियो. So that's all about shrinkage limit and shrinkage ratio. For more details, study hard. Thank you. Jai Hind.